for a decade now, and I run a consultancy agency in London and Pakistan. We focus on HR, policy process. We do a lot of recruitment. Our recruitment is centered on technical industries more than anything else, but we also do marketing, sales, positions and all for our clients. We do work with banks, FMCGs, etc. But majority of our clients are technology companies. The name of my UK company is called Mushawar UK Limited. The name of my Pakistan company is Mushawar Solutions. In Pakistan, we also do a little bit of web development, but of course, the primary services that we offer are career coaching, HR policy process, and recruitment. We do a little bit of training. I do training. I do training online for clients who are based outside of London or UK, but I also do personal trainings. When we could travel, of course, post pre-COVID situation, I also used to travel and do these trainings. But आजकल आपको पता है that is impossible, and looks like traveling is going to be a little difficult till the end of this year, or perhaps even the start of this year. But we are keeping ourselves positive. We're talking about personal branding today, and it's very close to my heart. And I'll share that with you because personal branding was something I came across when I started my career in tech. I started working for a company where I realized very quickly after joining कि जो है यहाँ पे बहुत बुरा मोराल है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंडस्ट्री थी उसका भी जो व्यू पॉइंट था वो बहुत कोई पॉजिटिव नहीं था. सो आई रियलाइज्ड अच्छा, अगर मैं बहुत, और जब मैं एडवर्टीजमेंट्स या कुछ पोस्ट करती थी online, I would get a lot of feedback, negative backlash, and even though I was very new to that company, people would blame me for a lot of the things that they thought were happening in the company. Um, I realized very quickly that I need to do something of a damage control. And I realized that perhaps the best way to go forward is first let people trust me and then develop the trust with my company. So personal branding is something I started focusing on. And at that point in time, LinkedIn wasn't big, but it was something that has just started. तो मैंने फिर Facebook, LinkedIn, social media पे बहुत ज़्यादा engage करना शुरू कर दिया. I would talk to a lot of people. I would do a lot of pro bono consulting. I would do a lot of pro bono career coaching. I would help a lot of people who would apply and not get, would not be successful in interviews. In fact, मुझे याद है मेरी टीम जो है HR की, वो कहती थी आप जो है आपको पता चल जाता है 1 मिनट बाद कि बंदा जो है वो नहीं सूटेबल है फॉर अ पोजीशन, तो आप क्यों नहीं उसको फौरन बता देती हैं, यू जस्ट कट द स्टोरी शॉर्ट. तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं, इट्स आई फील सैड बिकॉज यू शुड गिव रीजन टू पीपल व्हाई आर दे नॉट डूइंग सो वेल और व्हाई आर दे नॉट बीइंग सिलेक्टेड. उनको फीडबैक देना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि अगर हम एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी रखेंगे तो लोग हमारे बारे में बाहर जाके अच्छी बात करेंगे. एंड दैट वाज प्राइमरीली माय USP. I started with career counseling, coaching everyone who came for an interview in the organization, and then from there on people started referring to me for their personal problems or career problems, etc. That was the ground where I started my personal brand. ठीक है. With time I have changed my personal branding, and it's very important for you to understand कि आपकी personal branding को कॉन्स्टेंटली चेंज होना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है. अब जो चीज़ या जिस तरह की पर्सनालिटी आपकी होती है एट द टाइम दैट यू आर 20 or 20 to 21 or 20 to 24, it's very different from the person you are at 25 to 30, and then you're again very different from 30 to 33, and then from 35 to 40, and then so on and so forth. जब आप एक आदमी नहीं हैं और आपकी चेंजेस जो हैं इतना इम्पैक्ट कर रही हैं आपके रिएक्शंस को, आप हाउ आर यू परसीविंग द वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स आपकी जो ब्रांडिंग है वो भी तो चेंज होगी ना. सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पर्सनल ब्रांडिंग कहते किस चीज़ को है. आपका नाम है
XYZ, क्या आपके बारे में लोग जानते हैं? सबसे पहले अगर आप काम करती हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बिजनेस रन कर रही हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप कोई सेलिब्रिटी हो, तभी आपको अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में सोचना चाहिए। एज ह्यूमंस हम तो वैसे भी वी क्रेव फॉर अटेंशन, वी क्रेव फॉर पीपल टू एक्नॉलेज अस एंड वी वांट पीपल टू नो अबाउट अस। हमें बहुत अच्छा लगता है डीप इनसाइड समवेयर कि जब हम एक लाइमलाइट में आए या हमारी तारीफ की जाए। ठीक है, तो ये समझ लें कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है एक तरीके से आप अपने आप को मार्केट करते हैं उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं भी करते तो आप अपनी फैमिली के अंदर यू वांट टू बी नोन एज द पर्सन हु इज ग्रेट एट वट एवर यू डू। You are a great mother, you're a great sister, you're a great wife, you're a great daughter, etc. etc. ये भी तो एक पर्सनल ब्रांडिंग प्रोसेस है। आपने एक ब्रांड अपना क्रिएट किया हुआ है टू पीपल हु आर यू आर इंटरेक्टिंग विद। इसी तरीके से अगर आप करियर या प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप किसी बिजनेस को नहीं रन कर रहे, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप ये रियलाइज करें कि आपका पर्सनल ब्रांड ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है आपके विद इन योर पर्सनल नेटवर्क विच इज योर फैमिली एक्सेट्रा, बट ऑल्सो द नेटवर्क यू आर एंगेजिंग इन व्हेन यू कमिंग टू वर्क। तो ऑफिस में जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस के बाहर या इंडस्ट्री में आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब आपके बारे में एक नजरिया कायम करेंगे। वो जो नजरिया कायम करते हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्रांडिंग। अब ये पर्सनल ब्रांडिंग एट ऑल कॉस्ट सबकी क्रिएट होती है। आप अगर इसको कंट्रोल करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली देन यू कैन मोल्ड हाउ पीपल थिंक अबाउट यू। मैनिपुलेशन जिस चीज को कहा जाता है, और मैनिपुलेशन एट ऑल टाइम्स इज नॉट ग्रेट। ऑफ कोर्स व्हेन यू मैनिपुलेटिंग विद पीपल्स फीलिंग्स इज रॉन्ग, बट व्हेन यू मैनिपुलेटिंग पीपल्स व्यू ऑफ योरसेल्फ सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल और यू कैन टेल पीपल दैट यू आर सक्सेसफुल, नाउ दैट इज द की। हर चीज में देयर इज अ फाइन बैलेंस, यू नो, देयर इज ब्लैक एंड व्हाइट बट देयर इज आल्सो ग्रे, so you have to find the balance. Personal branding is extremely important because it is the reason why you're going to go forward, if you want to go forward. कल को आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो आपका पर्सनल ब्रांड या आपकी रेप्यूटेशन जो जितनी स्ट्रांग है, उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, उतना अच्छा आप इंटरव्यूज में कर सकते हैं। और बहुत दफा ये होता है कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग या आपका जो ओवरऑल ऑरा है या पर्सनालिटी है या नाम या आपका काम आपकी इंडस्ट्री या आपकी कॉर्पोरेशन में जाना पहचाना जाता है, तो कभी कभी आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता। बहुत दफा मैंने अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 इंटरव्यूज दिए हैं और 2 जॉब्स ली हैं। उसके अलावा बाकी दफ़ा मुझे कभी कभी इंटरव्यूज भी नहीं देने पड़ते थे, मेरे पास ईमेल आ जाती थी विद एन ऑफर। वाई? बिकॉज मैंने कुछ इनिशियल साल लगाए जिसमें मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया। लोगों को पता चल गया, हाँ जी भाई ये साहिबा हैं, ये आईटी में काम करती हैं, इनको रिक्रूटमेंट आती है और लोग इनको जानते हैं, तो इनका नेटवर्क अच्छा है, इसलिए ये काम चला देंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे ऑफर कर दी। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि अगर आपने अपने उस नजरिए पे काम कर दिया जिससे, या उस रेपुटेशन पे काम कर लिया जिससे जिससे लोग आपको पहचानते हैं, आपकी जो पहचान है, वो पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपने एक दफा स्ट्रॉन्ग कर दी, तो आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। एंड दैट शुड बी योर गोल, बिकॉज लाइफ शुड बी मेड इजी। इनिशियली आपकी जो आप आज से स्टार्ट करें। इट डजेंट मैटर अगर आप अर्ली 20s में नहीं है, इट डजेंट मैटर इफ यू आप अर्ली 30s में नहीं है, इट डजेंट मैटर इफ यू इन योर 40s एंड 50s। आप आज तय कर लें कि हाँ भाई मैं आज से अपने ऊपर काम करूंगी और मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसमें मैं ऑनलाइन इंटरेक्ट करूंगी लोगों से या अपने आप के इंटरेक्शन या नेटवर्क के लिए कुछ ना कुछ काम करूंगी। मैं किसी को फ्रॉम माय इंडस्ट्री कॉल करूंगी, उनसे दोस्ती बनाऊंगी, उनके बारे में जानूंगी ताकि लोग मेरे बारे में जाने। नाउ दैट इज द importance of realizing that yes, I need to do personal branding, I need to spend time on personal branding और अपनी पहचान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे काम करना है। अब ये समझ में आ गया हमें, आई होप मैंने काफी हद तक समझा दिया हो कि पर्सनल ब्रांडिंग कहते किसको है या वो है क्या चीज। जब हमें ये समझ में आ गया कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या चीज है, हेलो फाइजा,
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है आज की दुनिया में पर्सनल ब्रांडिंग की। एक मैंने आपको मिसाल ये दी थी कि अगर आपको लोग जान जाएं, आपको पहचान जाएं आपकी स्ट्रेंथ्स के लिए, आपके काम के लिए, तो कल को आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई करने में, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, अपना काम स्टार्ट करने के लिए, प्रोबोनो फ्रीलांस काम करने के लिए, एक्सेट्रा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर लिया, उसको पहचान लिया, तो कल को आपकी पहचान आपका जरिया इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। ठीक है। अब एक और बात है, पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप अपने कंट्रोल में ले लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिजिटल ब्रांडिंग तो अब हो ही रही है। आप अगर आज के दौर में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी ना कभी कोई गूगल सर्च की होगी, आपने कभी ना कभी बचपन में कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा और वहां पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया होगा। वो कहीं ना कहीं imprinted है in someone's mind, in someone's systems, people can access it, people can refer to it। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अगर हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूनिफॉर्मली इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रोफाइल यूआरएल सिर्फ एक ही हो। मेरा URL for every social media platform is Maheen and Sumro. So if you type Maheen and Sumro on Facebook, you'll get my profile. You type Maheen and Sumro on LinkedIn, you get my profile. You type Maheen and Sumro on Twitter, you get my profile. Similarly for Instagram, Pinterest, etc., etc. Similarly, when I go and brand any other company or client, I tell them कि आपका जो URL है, जो भी सोशल मीडिया URL है, वो आपका सॉलिड एक ही होना चाहिए, एंड दैट शुड बी वन ऑफ द प्राइमरी ब्रांडिंग स्टेप्स दैट यू टेक, कि आप अपना सोशल मीडिया हैंडल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स एक रखें, बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू रीच आउट टू यू, इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू फाइंड यू, इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई यू। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये करें कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि आपका डिजिटल पर्सोना आज नहीं तो कल आपके काम आने ही वाला है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांडिंग टुडे। अब कोविड हुआ है, हम में से किसी को इतना चांस नहीं मिल रहा था कि हम इंटरैक्ट करें, तो क्या हमने बिजनेस बंद कर दिए? क्या हमने काम करना बंद कर दिया? नहीं, हमने इंटरनेट को इस्तेमाल किया ताकि हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकें, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकें, ताकि लोग हमें भूल ना जाएं। कोविड के बाद भी तो दुनिया है ना, तो जब वो दुनिया काम पे आएगी, जब लोग काम करना शुरू करेंगे, तो वो फिर से रिक्रूटर्स ढूंढेंगे या करियर काउंसलर्स ढूंढेंगे या ट्रेनर्स ढूंढेंगे, तो उनको याद रहना चाहिए ना कि माइन कौन है। इसी तरीके से अगर आप SQA quality assurance engineer and you're a senior quality assurance engineer, if you continue to read up on quality assurance and you start sharing relative or related material about quality assurance on your social media profiles, not only will you benefit from it, but people in your industry will benefit from it, because they will also read it, they will acknowledge कि हाँ भाई आपके प्रोफाइल से मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे इनको फॉलो करना चाहिए, because this is someone who knows what she's doing। ठीक है। इसके अलावा what you can start doing is perhaps doing small videos about something related to quality assurance trends, how COVID impacted quality assurance processes, etc. These are just small examples, but these are things that you needed to do and you should do when you're maintaining a personal brand. You have to be interactive with people. If you are shy and you can do video live sessions, which I completely understand because I am not someone who is very fond of it, तो आप
at least I'm sure you are in communities like women in tech, you're perhaps in communities like tech geeks, you're in मतलब different फेसबुक एंड लिंक्डइन पे आपको आपकी डेवलपमेंट कम्युनिटीज मिल जाएंगी जहां पे आप इंगेज कर सकते हैं विद अदर प्रोफेशनल्स अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेंड्स, अबाउट टेक्निक्स दैट यू कैन फॉलो, एंड यू कैन इंटरेक्ट एंड नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो impact other people with your knowledge, because if you're frequent then people will start referring to you, they will know that you know better and they will follow you. You could start writing blogs on your LinkedIn profile and publishing them. You could start writing blogs on a blogging platform, and there are a lot of free blogging platforms that you can use and get recognition through there. So there's so much to do and you need to do so much, because digital persona is one of the strongest links to your personal branding path and journey. अभी हमने बात की कि ठीक है पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, हमने समझ लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग में डिजिटल पर्सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी समझ लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से वो हमारे काम आ सकती है। अब हमने ये भी बात की है कि पर्सनल ब्रांडिंग किसी ना किसी तरीके से तो बन रही है, आपकी रेपुटेशन तो किसी ना किसी तरीके से बन रही है, लोग आपके बारे में कोई ना कोई राय रखते हैं, क्या आप उस राय को एक अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है और आपको करना चाहिए। आपके पास ये चांस है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मार्केट करें, अपनी वीकनेसेस को परहैप्स छुपाएं, या फिर you're not very vocal about it. If you don't know something, it's okay, you don't know something, but there's a lot that you know, so you focus on your strengths and you tend to let people know that you are excellent or an expert at whatever you know. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग किस किस तरीके से की जा सकती है। व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स दैट यू कैन यूज अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। सबसे पहले तो डिजिटल पर्सोना, मैंने जैसे आपको कहा, अगर आप प्रोफेशनल ग्रोथ दिखाना चाहते हैं सो द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इज कि आप अपना लिंक्डइन बहुत स्ट्रॉन्ग करें। लिंक्डइन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू सेशंस ऑन इट। आई थिंक मैंने इस कम्युनिटी के लिए भी किया है, और अगर मैंने नहीं किया है तो I think you can find it on YouTube. I think I did it for Code Girls. Yamna would remember, but anyways, so LinkedIn को किस तरीके से strong करना है, that's a completely it's a science in its own, and it is time that you do it. तो प्रोफेशनल इम्पैक्ट के लिए, प्रोफेशनल पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लिंक्डइन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर वे यू कैन क्रिएट वेव्स इज बाय बीइंग एक्टिव ऑन ट्विटर, फॉलोइंग right people who are knowledge leaders in your industry and engaging with them and learning from them. तीसरा, आप फेसबुक पे यू कैन क्रिएट योर अकाउंट एंड यू कैन फाइंड द राइट कम्युनिटीज वेयर यू कैन एंगेज विद पीपल इन मीनिंगफुल डिस्कशंस। अब देखिए, इंटरनेट के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको। अगर आप अपने इंटरनेट यूजेज को प्रोडक्टिव बनाएं तो आपको बहुत कुछ फायदा है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज ले सकते हैं, आप इंडस्ट्री लीडर से इंगेज कर सकते हैं। अब वुमेन इन टेक कितनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, ये कम्युनिटी है जहाँ पे इतने लोग आपको सजेशंस देते हैं अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करें तो। सो बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग में हमने प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए कहा कि यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर। कैन यू बिलीव इट, आई एम सेइंग दैट ट्विटर इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड प्रोफेशनल interaction and engaging platform. ठीक है, फिर हमने कहा कि you can also use Facebook for professional engagement if you are interacting with communities which are focusing on the industry or the technology or the techniques that you're working on. ठीक है, फिर हमने बात की कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इंस्टाग्राम आप मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल ब्रांड को भी इस्तेमाल मतलब उसको भी इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अ लॉट ऑफ पीपल यू विल सी इफ़ यू गो ऑन इंस्टाग्राम कि कहते हैं कि there's plenty career coaches, there are plenty of HR professionals, there are plenty of technology professionals who use Instagram and engage with their audiences meaningfully by using that platform.
बट ये भी एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि पर्सनल ब्रांडिंग दो तरह की होती है। एक होती है पर्सनल ब्रांडिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, और एक है पर्सनल ब्रांडिंग फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, और इन दोनों को अलग रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांडिंग जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए इस्तेमाल होती है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि I'm sorry, I just lost a little bit of there. So professional जो lives हैं, obviously उसको आप नहीं चाहेंगे कि personal life में interfere कर सकें। Professional platforms वो होंगे जो कि majority of people would like to be accessing it। आप उसकी audience wide रखेंगे। अगर आप उसकी audience wide नहीं रखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। ना लोग आपको जानते हैं, ना आपको पहचानते हैं, ना आपके काम को जानेंगे, और वो जो आपका पर्पस है ऑफ यूजिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया और परहैप्स इंटरेक्टिंग विद पीपल इन द इंडस्ट्री, वो फिर फुलफिल नहीं होता। तो इसलिए प्रोफेशनल पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म्स अलग हैं और उनको अलग रहना चाहिए। आपके डिफरेंट अकाउंट्स होने चाहिए। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पर्सनल फेसबुक अलग हो सकता है और प्रोफेशनल फेसबुक अलग हो सकता है। वेरी सीनियर professionals I've always who are my clients, who I career coach with, I always tell them कि आपका जो फेसबुक पे एक प्रोफेशनल पेज अलग होना चाहिए जहाँ पे लोग आपसे इंटरेक्ट कर सकें, जहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकें जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं और जिस तरीके से आप मोल्ड करना चाहते हैं अपनी इमेज को विद इन द इंडस्ट्री दैट यू वर्किंग फॉर। सिमिलरली अगर आपको समझ में आता है तो आप ये भी समझें कि परहैप्स इंस्टाग्राम आप एक वो रखें जो कि नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू, ओनली पीपल इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हैव एक्सेस टू, आप रिस्ट्रिक्टेड रखें। और एक पर्सनल इंस्टाग्राम वो हो या प्रोफेशनल इंस्टाग्राम वो हो जिसकी ऑडियंस बहुत बड़ी हो सकती है, जिसकी एक्सेस लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकती है और वो उसके थ्रू आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की पर्सनल ब्रांडिंग की दो टाइप्स हैं। एक पर्सनल ब्रांडिंग फॉर प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल करियर है, एक पर्सनल ब्रांडिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ है। पर्सनल ब्रांडिंग फॉर पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? Because you don't want people to think you're a manipulative and snooty person. You want to become more popular, and you start with the home ground. If you're popular in a positive way in your home ground, there's a huge probability you'll be popular eventually in the when you go out and face the world and the audience. Basically जो आपका पर्सनल प्रोफेशनल नेटवर्क है वो आपको प्रिपेयर करता है टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द प्रोफेशनल नेटवर्क। ठीक है? तो जितनी भी आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग या अपनी रेपुटेशन मैनेजमेंट या ये जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जैसे कि आपने सुना होगा, उसके लिए जितनी भी जो आपको सैम्पलिंग करनी है ना, वो आप अपने पर्सनल बैकग्राउंड पर्सनल प्लेटफॉर्म्स पे पहले करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो आपको सक्सेसफुल लगती है वो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं ऑन योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स। तीसरी बात ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, होल्ड ऑन सेकेंड, हमने दो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा रोकेंगी फ्रॉम basically putting yourself out there. The first is imposter syndrome. You will always feel you're not good enough for something and therefore you will not be able to talk about yourself. सबसे बड़ा चीज that holds you back is your imposter syndrome, the feeling that you're not enough, your self-esteem issues. To build a successful personal brand, it is extremely important कि आप उस मेंटल ब्लॉक को ओवरकम करें। मेंटल ब्लॉक को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल ब्लॉक वो हैं जिस दैट आर होल्डिंग यू बैक to trust yourself, to trust your instinct, and to trust your skills, and to trust your strengths. That is the only way to have a very successful personal branding experience. So unless मुझे पता है कि if you're an introvert you will have problem talking good things or sharing your achievements with the world, but it is what it is. आजकल की कॉस्मेटिक दुनिया में या पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर टू बी नोन फॉर व्हाट यू डू, you have to ensure that you are
talking about your strength, you're talking about your achievements, you're talking about what you did well and what worked right for you and how you impacted someone, and sharing with the world when someone sort of admires you or talks good about you. recommendations, पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जहां आप पर्सनल recommendations या प्रोफेशनल recommendations ले सकते हैं, make sure that you are getting professional recommendations. These professional recommendations can be from your colleagues, your peers, supervisors, people you studied within university, your professors. So a plethora of people you network with, your friends, people you find through communities and then become friends with or engage with, your clients. Try and get maximum recommendations, try and get maximum feedback from people wherever you can, and promote it on your social media platforms wherever there is an opportunity. Why? Because that only signifies how great you are, and people will trust other people's word on it. Sometimes you need, हम हमारी एक psychological understanding है, हम वो चीज़, फॉर इंस्टेंस अगर हम ईबे पे या अलीबाबा पे या फिर अमेजोन पे कोई चीज़ खरीदते हैं, तो मैं तो सबसे पहले ये क्लिक करती हूँ कि 4 स्टार या 5 स्टार रिव्यूज आइटम ही दिखाइए मुझे। क्यों? क्योंकि आई वांट टू ट्रस्ट अदर पीपल्स ओपिनियन, कि जो चीज़ पॉपुलर है या जिसके बारे में मैक्सिमम रिकमेंडेशन दी गई है वो चीज़ अच्छी ही होगी और उसमें से फिर मैं कोई चीज़ इस्तेमाल कर लूँगी। तो यही बात तो फिर आप पे भी अप्लाई होती है ना, कि अगर आपके बारे में बहुत लोगों ने तारीफ लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे हैं अपने काम में, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी इंडस्ट्री में एक अच्छा प्रोफेशनल करियर चला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग की बिल्डअप के अंदर या हाइप बिल्डअप करने के लिए, कि आप इंश्योर करें कि आपको रिकमेंडेशंस मिलें। तो पर्सनल ब्रांडिंग में अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि दो तरह की पर्सनल ब्रांडिंग्स होती हैं, दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक आपके लिए प्रोफेशनल होता है, एक आपके लिए पर्सनल होता है, पर्सनल इंटरेक्शन लाइफ के लिए होता है। तीसरी बात ये कि आपने रिकमेंडेशंस लेनी है ऑन मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू शोकेस दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट यू। तीसरी बात ये है कि जब आप तैयार हो जाएंगी और आप अपने आप को लॉन्च कर देंगी, पर्सनल ब्रांड, आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जब लॉन्च कर देंगी, तो आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म जरूर फेस करना पड़ेगा। नाउ देयर आर डिफरेंट kinds of negative criticism. As women, we are expected to laugh it off when someone from the opposite gender ridicules or makes fun of something we share. आप एक छोटा प्रोवर्ब भी शेयर करते हैं ना, अगर हमारी कौम को आदत कभी कभी, और ये इट्स जस्ट नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप छोटा सा प्रोवर्ब ही क्यों ना शेयर करते हैं, पीपल विल कमेंट ऑन इट एंड समटाइम्स विल रिडिक्यूल यू फॉर सेइंग अ सर्टेन थिंग। ठीक है ना, मतलब ये तक कि अच्छा फलाना आपने तो ये फलाने का प्रोवर्ब शेयर करती है, वो तो हमें पसंद ही नहीं है, वो तो इतनी बेवकूफ़ों वाले बात करता था, वो तो इतना पॉपुलर ही नहीं था, अच्छा ये जो आपने प्रोवर्ब इस्तेमाल किया इसकी ग्रामर सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ये तो कोई हाउ आर यू रिलेटिंग टू इट। मतलब पीपल विल criticize and comment negatively on whatever you do. You should never take it to heart and you should never quit. पर्सनल ब्रांडिंग में कभी भी फुल स्टॉप्स नहीं आने चाहिए। अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग में गिव अप कर दिया जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग नेगेटिव फीडबैक, तो फिर यू विल नेवर बी एबल टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। क्योंकि बात यह है कि पर्सनल ब्रांडिंग या आपका मैसेज तो स्ट्रॉन्ग तभी होगा ना जब वो रेपिटेटिव है, जब वो स्ट्रेंथ के साथ आता है, जब वो कन्विक्शन के साथ आता है, जब आप किसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप के बारे में बात करते हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म आए उसको आप, सबसे पहली बात, अगर वो रिपीटेटिव है, एक आदमी है या एक साहिबा है या जो भी है, कोई एक एंटिटी है जो कंटिन्यूसली आपको ट्रोल कर रही है एनीवेयर, वेदर इट्स ट्विटर और लिंक्डइन और फेसबुक और व्हाटएवर, सबसे पहली बात ये कि अपनी सैनिटी के लिए उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्लॉक करें, उनको डिलीट करें, उनको अपनी लाइफ से बाहर करें।
because someone who is on that side, on that path के भाई वो आपको तंग ही करने वाले हैं, तो there is no way you can win them over. So it's best that you block and delete them. तीसरी बात ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो हमने इम्पोस्टर सिंड्रोम डिस्कस कर लिया कि हम अपनी तारीफ नहीं कर सकते. दूसरा जो चीज़ हमें इम्पैक्ट करती है टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, वेदर इट इज़ इन फिजिकल फॉर्म और ऑनलाइन, इट इज़ दैट पीपल विल क्रिटिसाइज यू, पीपल विल try to make you look bad, people will not compliment you, people may snicker at you, mock you. You don't let it get to you. You be confident, you keep going, and you keep adamant. You should be adamant about your strength. You should define yourself. People should not define you. ठीक है? So be adamant. Keep going. Do not let the criticism affect you. Be sure about what you want to do. Third thing is be sure about what you want to do. आपका पर्सनल ब्रांड है. आप एक जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल थी, आप अगर फॉर इंस्टेंस एक मार्केटिंग जॉनर में काम करती हैं. Kamal is typing something. Kamal is a upcoming makeup artist. ठीक है? अब I'll give her example, and I hope that it is something that she can learn from, and it adds on to your information. Kamal, you're an upcoming makeup artist, right? You need to make sure कि आपका USP क्या है. What are you doing different from other people? How is your makeup technique or your way to work, or how you interact with people different from all the other makeup bloggers or makeup technicians that are available in the market? You need to find your niche and then keep hammering it in one way or the other, through videos, through great photos of your work, through great online communication, whether you're creating social media posts, etc. You need to ensure कि आपकी जो भी definition है, जहाँ जहाँ पे आपका social media platform है, वहाँ पे URL भी same है, वहाँ पे description भी same है, और आपकी जो USP या आपका जो चीज है that makes you different is repeatedly ingrained and embedded in people's mind by you repeating that conversation or that communication mark again and again and again. Not maybe several times in a day, but definitely several times in a week, because you have to ensure कि आप अपने आप को जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, या आप जिस तरीके से अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं इन दी कम्युनिटी, आप वो इनग्रेन करें इन एवरीवन्स माइंड, और आप रिपीटेडली उसके बारे में बात करें. ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज, don't let your imposter syndrome and self-esteem issues put you behind. You should trust yourself, you should go with your gut, and you should do this irrespective if you're an introvert or an extrovert. When you're an introvert and you're entering a conference room and you know that you have to network, but you're feeling like this is not me, I can't do it, take a deep breath and just push yourself into the room and enter it with conviction that this is just a goal. I just have to think that this is something that I would do. This is any other goal. I just have to deal it with strong conviction. I just need to deal it with my strongest, my strength, and I'll do this. I'll make sure that it happens. So your strong conviction and your confidence is the true key of building a positive and strong personal brand, and for your success to be there. ठीक है? So let go of all your imposter syndromes and self-esteem issues and work on your strength and work on your confidence. Second, make sure that you don't take criticism too hard. Don't let people define you. Don't let people hold you back. Don't let the criticism and they mock how they mock you hold you back. You have to be persistent. You have to make sure that you don't let people affect you. What you do should affect you, and what you feel should affect you, and what you want to do should be your goal. No one else has the right to define it for you, and that is the most important thing when it comes to personal branding.
The third is that you make sure that you know what your personal brand should stand for. There are certain words that should define you. You should write a number of words that you think define you as a person, that define your work, and then keep using those words repetitively in your communications strategy. That should be your communication strategy. First, identify what is your USP, what are your strengths, define yourself, define your work, use those words again and again in the communication. You use everywhere, whether when you're talking to people, keep bringing it up. Like for instance, मैंने अब तक कितनी दफ़ा आपको ये बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट करती हूँ, या मैं टेक में काम करती थी, या मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया है, या वट एवर, मतलब यू नो देयर हैज़ टू बी something about you that you keep repeating to people, and it has to come from the fact that you know that this defines you. You have to define yourself first, and then you have to repeat it to the world so that they will then acknowledge you for it. Then they will set their reputation, your reputation in their mind. They will view you as that certain characteristic that you have chosen to define yourself as. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये समझ लिया कि ठीक है, क्रिटिसिज्म को नहीं लेना, ठीक है, इम्पोस्टर सिंड्रोम को मैनेज करना है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज को मैनेज करना है, ठीक है, लोगों को क्रिटिसिज्म को मैनेज करना है, समझ लिया ये सब कुछ. अब क्या करना है, रेपिटेशन, परसिस्टेंस भी हमने डिस्कस कर ली. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग. आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है, आपने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी बना ली, आपने अपने पर्सनल ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स भी ढूंढ लिए, अपने आप को कैरेक्टराइज भी कर दिया, अपने आप को डिफाइन भी कर दिया. मगर अगर आपने नेटवर्क नहीं किया तो पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग कैसे होगा? अब पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग करने के लिए ठीक है, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. यू आर पुटिंग योर मैसेज आउट देयर, यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, बट are you um, making sure that you're networking with the right people? आज जो मैं हिराज ऑनलाइन हिराली, I will take this time to tell you how important your networking is. When I came to UK, I hardly knew anyone. I had to restart everything. So the first thing I did was reach out to people in my network who I already knew were in the UK, was settled or were doing something, and I reached out to them so that I could learn more about this industry. I could learn more about this market. Um, and in that learning process, I made sure that my networking skills grew stronger with time. That I learned how people were interacting with each other, how people were talking with each other. Of course, यहाँ पे लोग जिस तरीके से एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू डू इन बैक इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में पहले फॉर इंस्टेंस शुरू में आता थी अस्सलाम वालेकुम, जी दिस इज़ माहीन, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम, आई दिस इज़ माहीन, आई वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग. तो आदत थी अस्सलाम वालेकुम करके बात शुरू करने की, और इतनी ज़्यादा आदत थी कि आई रिमेंबर जब मैं अपनी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में गई, इट वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जिनसे मैं बाद में बाहर बात करती थी, और मेरे सीईओ ने एक दफ़ा मुझे पॉइंट आउट किया कि माहीन, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ हाउ यू टॉक एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद हाउ you speak, magar when you're talking to people who are outside your market and who are not familiar um, with your trends, especially in the post 9/11 world, maybe starting your conversation with assalamu alaikum is not the best way forward. ठीक है, within the team it's fine, but when you're interacting with clients, sometimes they will take offense, and sometimes they might not take offense. People in Middle East, even if they're not Arabic or Muslims, they will not take offense to the fact that you're saying assalamu alaikum. But some people will take offense, especially when you're talking to markets other than these connected markets who are either Muslims or aware of Muslim background and culture, right? So you have to understand that I had to completely change my communication strategy. So
so I have to be mindful every time now I pick up a phone to call a client, or when I'm meeting people, whether I am okay to shake hands or not. That's, sometimes I am, sometimes I'm not. But I had to really learn it. Ab yahan pe har aadmi, and I know Hira is here, so Hira will also say, everyone says cheers. And initially I was like, but why? Every conversation ends with cheers, and it feels like if I'm not saying cheers to someone, it's just not the end of the conversation, or I was just not being nice enough to people. Um, but now I do it. It just comes naturally, and I had to learn this. So really, networking में आपको अपनी ऑडियंस को भी समझना है, अपने मार्केट को भी समझना है, उनका उनका की मैसेजिंग या उनका कल्चर क्या है, वो उनको क्या सही लगेगा, क्या गलत लगेगा. यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट what you say, what you to who you say that, how you introduce yourself, and you have to keep changing your communication according to the audience you're reaching out to. And that is the only way you can be successful at networking. One of the most fundamental things I learned, which perhaps was, when I think about it, it's very basic. अगर हम किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप अगर कोई मुझे फेसबुक पे या लिंक्डइन पे अननोन आदमी या औरत जो है वो मैसेज कनेक्शन भेजती है, मैं पहले सोचती हूँ व्हाई शुड आई एड दिस पर्सन. बट when they write something down that this is why I want to connect with you, um, you know, then I know why they want to connect with me and I connect with them. ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी. लिंक्डइन पे, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में आप किसी को भी ऐड नहीं कर सकते अनलेस कि आप लिंक्डइन रिक्वेस्ट में ऐड अ कमेंट होता है, उसमें आप लिख के भेजें उनको एग्जैक्टली व्हाई यू वांट टू कनेक्ट विद देम. So unless I've written down exactly why I want to connect with a certain person, they will not accept my LinkedIn request. And I don't need to be offended by it. Sometimes it is, they will respond back to you and tell you, okay, this is why you want to connect with me, but I don't think that is something I can offer you, or this is not something we can collaborate on. And so they will say sorry, and it is okay, because quite frankly, to have a useless connection in my network is only going to take space, that's not going to give me any leads. So you have to be mindful about the network you're creating, whether it's positive networking, whether it will eventually help you in some way or the other. Will this be a positive networker? Will this be a engaging network connection or not? Will I be learning something from them? Will this lead to a certain business or career progression अपॉर्चुनिटी और नॉट? ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं जब आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं. मैंने जो है, जब शुरू में मैं यहाँ पे आई interacted with Hira, and Hira showed me what was LinkedIn Local. She told me you need to network with people, go out, put yourself out there. And in fact, she actually took me to a few events with herself so that I could get comfortable interacting with people, and I learned how she was greeting people, and I learned. And ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स में पहले काम नहीं किया हुआ है, मैंने मिडिल ईस्ट में बहुत अरसे काम किया है, मैंने यूएस मार्केट के साथ बहुत अरसे काम किया है, मैंने यूके मार्केट के साथ बहुत अरसे काम किया है. So this was not my first interaction. But when you completely move into a new market, when you completely move into a different scenario, you really need to reassess your body language. You really need to reassess how you're greeting people. You really need to reassess how you want to make your network get stronger. GB is asking how to get out of the awkward comfort zone. The only way to get out of the awkward comfort zone thing is you keep pushing yourself to do something that you're not comfortable with. And I honestly am the biggest example of this. I hate interaction with people. I'm an introvert. I know a lot of people will be like, "ये हो ही नहीं सकता." Mine is the biggest extrovert we've ever known. It's because I was comfortable with them that I would only show them the extrovert side of me. But otherwise, I'm the biggest introvert. I hate going out. I like living in my house and watching my Netflix or doing my work. मुझसे जितने documentation है करवा लें आप, मुझसे जितनी calls हैं वो करवा लें आप. मैं तो calls में भी I sometimes shy away. But the only way you can get out of your awkward comfort zone is you put yourself out there. The first experience
that you put yourself out there. The first LinkedIn local event I went to and I interacted with people, I realized this is not difficult. People are nice. People are friendly. People are not judging me about who I look and how I look and how I speak. It doesn't matter. If I'm just confident and I'm myself and I have a lot to talk about because I'm very proud of who I am, that will enable you to enjoy that experience. So you have to put yourself in places where you are breaking that awkward comfort zone thing, that you're breaking your mental blocks. You have to challenge your mental blocks, you have to break your mental blocks and go forward. Okay. And the only way you can do it, you can find smaller platforms to initially break out of your comfort zone and then go broader in your spectrum. मैं आपको पहले भी मैंने आई थिंक मैंने कोड गर्ल्स में एक एग्जांपल उनको दी थी और मैं आपको भी देती हूँ. मुझे जो है ना पहले ऑनलाइन सेशंस करना बड़ा मुश्किल लगता था और अजीब सी बात है क्योंकि इतने जूम इंटरव्यूज़ लिए हैं और इतने स्काइप इंटरव्यूज़ लिए हैं और ज़िंदगी में इतनी मीटिंग्स की हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, तो लाइव सेशन मुश्किल नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी मुझको लाइव सेशन थोड़ा सा आई डोंट नो डॉन्टिंग लगता था और मुझे लगता था मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शायद इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती है. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने छोटे छोटे सेशंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए ऑन माय ओन टाइम ऑन माय लैपटॉप, और फिर मैं वो रिकॉर्ड करके उनको देखती थी और फिर कुछ अपने जानने वालों से या अपने मेंटोर्स से शेयर भी करती थी और उनसे भी फीडबैक लेती थी और ख़ुद को भी अपने आप को क्रिटिक करती थी कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है. आहिस्ता आहिस्ता जब मैं करती रही तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया टू फेस द कैमरा. और मैं आपको ये भी बताऊं कि it comes with your personality. I am not fond of taking pictures. मुझको कभी भी स्माइलिंग फॉर द कैमरा बड़ा मुश्किल लगता है. ठीक है, तो सिर्फ लाइव सेशन करना मुश्किल नहीं था, अपने आप को कैमरे के सामने बिठाना भी मुश्किल था. तो ये एक ऑकवर्ड चीज़ थी जिसको मैंने अपने आप को ब्रेक किया बाय सोशली कंडीशनिंग माय माइंड इनटू मेकिंग माई सेल्फ कंफर्टेबल विद दिस सिनेरियो. तो when it comes to, for instance, live sessions, now I can talk to you, I can talk to people more comfortably on it because मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता सोशली कंडीशन किया. अबाउट पीपल, मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता सोशली कंडीशन किया टू टॉक टू पीपल, टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, टू आस्क क्वेश्चंस. हाउ डिड आई प्रोग्रेस इन माई करियर? आई प्रोग्रेस्ड इन माई करियर बाय आस्किंग क्वेश्चंस. मैं डरती थी अपने सीईओ से या अपने सुपरवाइजर से क्वेश्चंस पूछते हुए बिकॉज आई वुड थिंक कि दे थिंक दैट आई एम डम देन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट आई वुड स्टिल आस्क इट. वाई? बिकॉज अगर मैंने वो क्वेश्चन उस वक्त नहीं पूछा होता तो वो मैं बाद में रिग्रेट करती, क्योंकि वो उससे बढ़ के कोई काम देते थे या उससे बढ़ के कोई डिफिकल्ट चीज़ देते थे जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती होती थी, बिकॉज मुझे बेसिक चीज़ ही नहीं पता थी या बेसिक फाउंडेशन ही उस चीज़ की बतानी थी. तो मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की, मैंने सीनियर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया. जूनियर्स से मैं बहुत आराम से जेल हो जाती थी, उनसे काम भी करा लेती थी, उनसे बात भी कर लेती थी, मगर जब मैं सीनियर अपने से बड़े लोगों के साथ काम करती थी, हालांकि वो शायद टाइटल्स में मेरे बराबर थे या इन दी ऑर्गेनाइजेशन दे हैड द सेम रोल और वर ऑन द सेम रोल एज मी, उनके साथ मैंने अपना ऑकवर्डनेस इस तरीके से कम की कि पहले मैंने काम को सीखा, मैंने उनके काम को सीखा, उनसे पूछा कि आप काम कैसे करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी और उसके बाद फिर उनसे जब कॉन्वर्जेशन करती थी तो उनको लगता था कि हाँ, इसको पता है कि ये क्या बोल रही है, ये सीख गई है. तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे फिर मुझसे बात करना शुरू करती, बिकॉज आई वुड नो हाउ टू talk to them, I would know where they've come from, I would know their success stories, I would know their work. तो मैंने इवन टेक्निकल चीज़ें उनसे सीखी. तो आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप को सोशली कंडीशन करना पड़ेगा टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, टू डू थिंग्स दैट आर नॉट कंफर्टेबल. और आप छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी प्लेटफॉर्म्स पर जाएं. ठीक है, अब विमेन इन टेक एक छोटी कम्युनिटी है, तुम यहाँ पे लोगों से
स्ट्रेंजर्स से बात करना शुरू करो, यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करो। जब पीपल आर आस्किंग थिंग्स तो अपना परसेप्शन दो, इवन इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस यू कैन शेयर योर व्यूज। आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू बिकम समवन हु इज एबल टू गिव व्यूज और शेयर हर व्यूज विद पीपल, you'll gain that confidence कि हाँ मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। बात करना शुरू करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों से बात करना शुरू करो। जब बात करने की आदत बढ़ जाएगी तो फिर हर चीज़ ऑकवर्ड नहीं लगेगी, फिर लोगों से मिलना ऑकवर्ड नहीं लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ठीक है, आई एम बेसिकली क्वाइट सेल्फ प्रमोशन के बारे में भी हमने बात कर ली। अच्छा, नेटवर्क की जो एक और चीज़ हमें बात करनी है, नेटवर्किंग में जब आप लोगों से इंटरेक्ट करें तो मेक श्योर कर रहे हैं कि नेटवर्किंग में आप इनिशियली लोगों को उतनी ही इंफॉर्मेशन दें जितनी उनको चाहिए। when people ask you questions, make sure that your answers are relevant to the question. Listen very carefully and then answer back. Your network can only become stronger with your repetitive engagement but meaningful engagement. आप स्पैम चीज़ें शेयर करेंगे ना, जैसे लिंक्डइन को लोगों ने फेसबुक बना दिया था, उससे क्या हुआ कि जो सीनियर लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, आप यकीन करें जब भी बात होती है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि हाँ भाई जो भी फेसबुक पे अजीब लिंक्डइन पे अजीब सी चीज़ें शेयर करना शुरू करते हैं मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरी न्यूज़ फीड पे जो है ना इररेलेवेंट चीज़ें पब्लिश होती रहें। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीपल react to people who are irrelevant. You don't want irrelevancy in your life. आपको क्या लगता है ये जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग या जो और भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आप वो अपनी लाइफ को सिंपल रखते हैं, मिनिमलिस्टिक लगते हैं, वो अपने कपड़े भी सिंपल रखते हैं ताकि उनको ज़्यादा सोचना ना पड़े। हम जो है कहीं निकल रहे होते हैं 1 घंटा सोचते हैं अच्छा भाई आज क्या पहनूं कि ये सही लगेगा या नहीं लगेगा, इस ओकेजन के लिए लुक सही है या नहीं सही है। they make their looks absolutely minimalistic and it is constant। तो उनको ये टाइम स्पेंड ही नहीं करना पड़ता किसी चीज़ के ऊपर कि वेस्ट ही नहीं करना पड़ता कि मैं क्या पहनूंगा या मैं किस तरह किस चीज़ लगूंगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि आप अपने नेटवर्किंग के अंदर मिनिमलिस्टिक एक व्यू लाएं और मीनिंगफुल कंटेंट लाएं और मीनिंगफुल कंटेंट या इंफॉर्मेशन लाएं। आपको बुरा लगता है ना जब आपके डीएम्स में लोग मैसेज करते हैं एज प्लीज़, मतलब वाई आर यू आस्किंग माई एज, आर यू सिंगल प्लीज़, आपको बुरा लगता है ना ये सारी चीज़ें। तो आप ये समझें कि जब आप किसी इंडस्ट्री लीडर को कोई मैसेज करते हैं और आप उनसे कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से, तो वो ऑब्वियसली आपको ब्लॉक और बैन ही करेगा ना। अगर आप अपने लिंक्डइन पे जो है वो मीम्स शेयर कर रहे हैं, वो आप जो है वो देखिए लिंक्डइन इज सच अ प्रोफेशनल नेटवर्क कि आपको वहाँ पे रिलीजियस चीज़ें भी शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क, इट इज़ अ ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्क। तो आपको जो फर्स्ट चीज़ें सिखाई जाती हैं कम्युनिकेशन का 101 ये है कि जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो within the organization वैसे भी don't interact with people about social issues, don't interact with people about political issues, don't interact with people about ethnic issues। मतलब these are things जो continuously कहा जाता है कि इनके बारे में बात ना करें, क्योंकि देखें पॉलिटिकल व्यूज, रिलीजियस व्यूज, रेशियल एथनिक व्यूज, ये तो एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम पूरी दुनिया या हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में दीज आर द इश्यूज वे पीपल हैव had fights and wars over it। तो मतलब आपको कैसे लगता है कि इनके बारे में अगर आप पीपल से इन प्रोफेशनल सेटिंग बात करेंगे तो आपके बीच में कोई अग्रेसिव सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती। तो नेटवर्किंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट असूल ये है कि मेक इट सिंपल, make it meaningful, do not try to offend people, share important information about yourself, share your strengths, share your weaknesses, make your connection with someone meaningful, learn from them and make them learn from you. This will only ensure that you are setting up the right precedence, you're setting up the right reputation for yourself and your online reputation management system is consistent। ठीक है, so I think we're
pretty much done with whatever I was supposed to cover today. एक चीज़ जो हमने लिखी हुई थी, आई थिंक वो ये था कि हमें कैसे लगेगा कि हमारी जो पर्सनल ब्रांडिंग की जो जो भी एफर्ट हमने की है वो सही है या नहीं है। तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि हमारी पर्सनल ब्रांडिंग एफर्ट या जो हमने ब्रांड मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी रेपुटेशन मेंटेन रहे, वो हमने सही किया है या नहीं। वो इस तरीके से कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, obviously that means that people think that you're sharing the right information, they want to be connected with you. So whether they send you a connection request or they follow you, you know, that means that you're doing something right, that is clicking with certain people, right? तीसरी बात ये, you will start getting requests for feedback, for pro bono coaching. You will start getting requests for collaboration. You will start getting pitched for positions even when you don't apply for them. This shows success in whatever you set out to achieve through your personal branding. These are just some of the ways that you will know that your personal branding is on point. If you feel that you are trying to do personal branding and you're still not getting any followers, you're still not getting people to engage and collaborate with you, you're still not getting the right jobs, etc., there's something still missing there, then you perhaps need to speak to a personal branding specialist. Book a call, book a discovery call, book a half an hour call. आपको बहुत लंबा सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। आप अगर एक दो सेशन ही किसी पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट से ले लेंगे तो वो आपको असेस करके आपकी वीकनेसेस बता सकता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बता सकता है। जुमर, हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो आई होप कि आप रिवाइंड करके इसको देख सकें, मगर let me just do a quick go through about what we did today, okay? Because it's over 1 hour, I don't think हम इससे ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। हमने आज बात की कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली वो नज़रिया है या वो व्यू पॉइंट है जो आप क्रिएट करते हैं इन अदर्स माइंड, जिससे वो आपको पहचान सकें। आपकी पहचान क्या है, दैट्स योर पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग आजकल जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से करते हैं तो उसको कहते हैं डिजिटल पर्सोना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर डिजिटल पर्सोना, बिकॉज आजकल तो एम्प्लॉयर्स भी अगर हायर करते हैं, आप यकीन करें, दे आर क्लाइंट्स हु आई वर्क विद, जो कि रेज्यूमे तो मांगते हैं मगर वो दूसरा चीज़ जो मांगते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझको जो है वो आप इनकी जो है वो भेजिए, लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक भेजिए। वो लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर देखेंगे, वो फेसबुक प्रोफाइल्स देखते हैं, वो ट्विटर देखते हैं, वो देखते हैं कि ये बंदा जो है इसने जो है कभी कोई रेशियल इंडिफरेंस या पॉलिटिकल या रिलीजियस इंटॉलरेंस शो तो नहीं की अपने पर्सनल प्रोफाइल्स पे। दे वांट टू शो कि मेक श्योर कि जो बंदा वो हायर करने चाह रहे हैं उसका जो कल्चरल फिट है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो उनके कल्चरल या वर्क वैल्यूज से फिट इन करती है या नहीं करती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग और डिजिटल पर्सोना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी पहचान है। दिस इज़ द वे यू कैन गेट सक्सेस। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सेलिब्रिटी हों, आप कोई इंटरप्रेन्योर हों या आप बिजनेस ओनर, तो ही आप पर्सनल ब्रांडिंग करें। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग एज अ प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए कल को आपको बहुत अच्छी पोजीशंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं व्हाइल यू एक्चुअली डोंट इवन अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है? तीसरी एक और फिर हमने बात की थी पर्सनल ब्रांडिंग के ये भी हमने बात की कि व्हाई डू वी नीड पर्सनल ब्रांडिंग। प्लेटफॉर्म्स क्या हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल इन पर्सन ऑन कम्युनिटीज़ या कम्युनिटी मीटअप्स। अब कम्युनिटी मीटअप्स बहुत होते हैं, लिंक्डइन लोकल है, आई एम श्योर कि वुमेन इन टेक की अपनी कम्युनिटी मीट्स होती थी। ऑफ कोर्स प्री कोविड टाइम्स की मैं बात करी, मगर अभी भी यकीन करें कि post COVID be a lot of interactive virtual meetings are taking place and conferences are taking place, and you can be a part of them, which reminds me that Ivy is doing an interactive virtual summit inshallah ta'ala in August. So make sure that you're a part of it, because we have an
excellent lineup of speakers that we're going to announce, and it's going to cover everything about leadership and personal branding and career progression and money mindset after the COVID issue, and how to cope up with this pandemic, and work on these essential things. ठीक है, फिर हमने बात की थी प्लेटफॉर्म की, तो हमने कहा कि लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, इंडीड, रोजी, ये सारी दीज आर योर प्रोफेशनल ब्रांडिंग नेटवर्क्स, ठीक है. एंड देन एंड इवन यूट्यूब, यू कुड बी यूजिंग यूट्यूब फॉर योर प्रोफेशनल ब्रांडिंग एज वेल. फिर हमने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की. पर्सनल ब्रांडिंग वो होती है जो कि पर्सनल मतलब कि प्रोफेशनल ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के दो टाइप्स हैं. एक है प्रोफेशनल लाइफ के लिए और एक है पर्सनल. जो पर्सनल लाइफ है ये वो है जो कि आपने पब्लिक से दूर रखी हुई है और सिर्फ किन्हीं चुने लोगों को एक्सपोज किया गया. ये आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो पर्सनल नेचर की होती है, और या आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, तो आपने इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो लिमिटेड पे रखी हुई हैं, ठीक है. एंड यू आर नॉट शेयरिंग दिस विद द वर्ल्ड. और जो प्रोफेशनल है वो ऑब्वियसली उसकी शेयरिंग आप उसकी जो शेयरिंग सेटिंग्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं आज आपका नाम गूगल सर्च इंजन पे टाइप करूं तो मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कोई चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि लोग जानें आपके बारे में, या आप कुछ लिख रहे हैं या अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं वो सर्च कर सकूं, उसके बारे में पढ़ सकूं, ताकि मैं आपको जान सकूं. तो मेक श्योर कि आपकी शेयरिंग सेटिंग्स ऑन ऑल योर प्रोफेशनल personal branding and interactive and networking platforms is capable of doing that. ठीक है. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बात की थी. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी URL सिमिलर रखें, एक रखें, ताकि पीपल कैन फाइंड यू, पीपल कैन आइडेंटिफाई यू, पीपल कैन लोकेट यू ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक साथ, ठीक है. जो भी आप अपने पर्सनल ब्रांड्स जो क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग आपको किस चीज़ से जाने, आप डेवलप कर लें कुछ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन, दैट डिस्क्राइब योर ब्रांड, एंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर वर्क. और यही वर्ड्स जो हैं वो रेपिटेटिवली यूज़ करें, चाहे आप लिखने में इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप लोगों से बात करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करें. आपको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन लोगों से कंसिस्टेंटली शेयर करनी पड़ेगी ताकि वो चीज़ आपकी ब्रांड को बिल्ड कर सके और आपकी ब्रांड आइडेंटिफिकेशन बन जाए. That is the communication strategy. Communication strategy also is consistent and persistent. Don't get demotivated when people mock you, whether in person or online, whether they troll you. Block people who are negative. It is useless communicating with people who repetitively are trying to bring you down or mock you. It's useless. वो नहीं change करने वाले अपना attitude, so it's useless even letting them follow you. So for your personal satisfaction and mental peace, block. Yeah. नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात की हमने. नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी के बारे में हमने ये बात की कि मेक श्योर करें क्या कहते हैं कि आप जब भी किसी को नेटवर्किंग रिक्वेस्ट भेजें उसके अंदर लिख के भेजें कि व्हाई डू यू वांट टू इंटरेक्ट विद देम, व्हाई डू यू वांट टू कोलैबोरेट विद देम, व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू कम आउट विद दिस रिलेशनशिप. जब भी आप किसी से नेटवर्क करें, मेक श्योर आप उनके कल्चर, उनके बैकग्राउंड से पहले से जानते हों. ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करें जो उनको ऑफेंसिव लगें, जो उनकी कल्चर में नहीं हो. हर आदमी का इंटरेक्शन का स्टाइल डिफरेंट होता है. उसको जानिए, उसको पहचानिए और फिर उनसे उसी तरीके से बात करिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सके. नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी में एक और चीज़ है कंसिस्टेंस. अगर आपने कंसिस्टेंटली लोगों से बात नहीं की, अपने बारे में नहीं बताया, उनके बारे में पूछा नहीं, उनके बारे में जाना नहीं, उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी, उनसे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन नहीं ली, तो आपकी इंगेजमेंट वैसे भी यूजलेस हो जाती है और आपकी नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी या पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं रहती.
I hope all of this was helpful. And in the end, how do we know that all of this worked? You get more followers. You start getting requests for people to tell you, advise you. You start getting platforms or invitations for collaboration, and you start getting pitched by recruiters for potential jobs that you did not even apply for. Now, these are your go-to goals that you will get once you have a successful personal branding in place. It was lovely speaking to all of you. I hope I have covered everything. Brilliant.